हरे हरे राम राम हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरी हरी बोल। ये तो बहुत बहुत जल्दी खत्म हो गया है तो। अरे यार ऐसे अमृत का थोड़ी बूंद चखा करके प्यासा छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई। So following actor Proji, Ajahn Krishna is here. Yes, Proji, I am here. Wow. Dandavat pranam, Proji, Dandavat pranam. My God, I'm blessed today indeed. We all are blessed by your presence, divine presence. Wonderful. So thank you, Prabhuji, for giving your time. So Janavdatu, should we welcome Prabhuji? Yes, Proji. Okay. So Hare Krishna, all of you. So first of all, welcome to all of you. So it's a great honor and delight, a moment of delight to welcome today's speaker, His Grace Amaglila Prabhuji. Prabhuji is, I'll just say a few words to Prabhuji's glorification. What we can say about Prabhuji? Prabhuji, you can just see how effulgent Prabhuji is. Prabhuji is one of the most talented devotee in ISKCON. And you can see that Prabhuji is vice president. In such a young age, Prabhuji is leading a great temple in Delhi, ISKCON Dwarka, Delhi. From within a very short time, Prabhuji has created such a wonderful, vibrant devotee community over there. Prabhuji has multiple talents. Krishna has gifted. You remember last time we discussed how we all have some skills Krishna has given and how we can use those in Krishna's service. Prabhuji is a living example for that.
Krishna has given so much skills and talents to Prabhuji. Prabhuji has the leadership skills, wonderful leadership skills. If you have visited Iskon Dwarka, you can see such a beautiful temple over there. And Prabhuji is leading their devotee team there and making now a new gigantic, magnificent temple. And you can also may have heard that in this COVID time, Prabhuji and the Dwarka devotees, they are serving people through prasadam. They are distributing millions of plates to refugees and people over there. Last time also, last year and this year also. So Prabhuji has all innovative ideas and dedication to serve people and Prabhupada's mission in a wonderful way. So Prabhuji is a very successful leader. Prabhuji, if we talk about speaking, Prabhuji is a dynamic speaker. Every speech he gives is full of knowledge, full of humor, and it attracts everyone. And therefore, Prabhuji is invited all over the country, and we hope all over the world also. So Prabhuji is going to different ISKCON temples across the country, giving various courses, discourses, and speeches. Prabhuji is also visiting faculty member in IIM, Indian Institute of Management, and various other prestigious colleges. Prabhuji is wonderful. You can see that, like, humor is an art, and it's very, very rarely few people can do. And mostly people, even if they do humor, they like do it in the material world, we can see. But in devotee community, hardly we see humor in Krishna consciousness, how to use humor in Krishna consciousness. But Prabhuji is expert in that. And so you can have glimpse of that from today. And of course, Prabhuji's lectures are there in YouTube and and various medias. You can go and see. And if you see like drama, Srila Prabhupada emphasized on drama, how we can present Krishna conscious philosophy through performance of drama that everyone will understand. So drama, Prabhuji's performance, like in our early days in Krishna consciousness, we used to perform, like we used to see that who will perform drama. And Prabhuji was like pioneer in ISKCON Delhi. We have Vaikuntha player, and Prabhuji is pioneer of that. And Prabhuji's drama performance is so spectacular that yes, we can say spellbound, breathtaking Prabhuji's performance. So I feel totally proud of Prabhuji that I got association, Prabhuji's close association. We were very young in Krishna consciousness. We used to sometimes study together and share what we learned from Prabhupada's books. Prabhuji has deep understanding and realization of Shastra. Prabhuji has like thorough understanding of all philosophy, and Prabhuji presents the philosophy in such simple and nice manner that everyone loves it. Everyone loves to read that. So with that, I request all of you, so please join me to welcome His Grace Amogh Leela Prabhuji. Hari Bol by saying Hare Krishna Mahamantra loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Prabhuji is very kind also. Prabhuji is so much busy, but still Prabhuji gives time for our base request. Prabhuji never declines the request from base. So we all devotees are very, very grateful, thankful that Prabhuji is giving his time. So let us take advantage of every bit of that. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Jai Ajanma Krishna Prabhuji ki jai. My God, actually, I had a selfish reason to come to this forum because I wanted to have darshan of Ajanma Krishna Prabhu. So that's why I had my own selfish reasons, because I have taken so much inspiration from Prabhuji. If I see the word consistency, so this word consistency personifies in the form of Ajanma Krishna Prabhuji.
Prabhuji is consistently good. Sometimes people are good, but for a time being or circumstantially. But Prabhuji is consistently serving selflessly from past at least 20 years, I am seeing. So that he's really an amazing personality. He has called me here to speak something, but actually speaking, Prabhuji is hundreds and hundreds of times, thousands of times. Prabhuji is a brilliant, as a devotee, Prabhuji is there, but somehow he has given me a chance so that I can get his blessings. So that is, I feel so grateful to Ajahn Krishna Prabhuji that he allowed this small servant of his to come to this forum and speak something. That I may speak something for my own purification, and then he would say, okay, Amol Lila, bless you. Nice service. Bless you. So Prabhuji is here to bless me. So I came for taking blessings. So I have got my own selfish reasons to be here. Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji spoke so many things about me. I don't think I have, but yes, Prabhuji has got divine vision. Now, since the Shastras they mentioned, Satyam Vidhatam Nijavritya Bhashanam. Those who are Nijavritya, those who are dear servants of the Lord, dear devotees of the Lord, whatever they say, that becomes true because they have said it. So all these qualities which Prabhuji mentioned, I don't have, but yes, since he has said them, so Krishna would say, okay, all right, since my pure devotee Ajamna Krishna Das, he has said it. So Amol Das, you may have these qualities because a pure devotee has said it, man. All right, you get it. So thank you, Prabhuji. All your words are just blessings for me. I'm a very small person before you. You have always been an inspiration for me. With such a golden heart and so many brilliant Kohinoor Hiras, diamonds you have given because you are Paras Mani. So like we have Janu Abdul Prabhu, one such vibhuti we have. So so many wonderful souls are coming from you, Prabhuji. So feel so grateful to you. Just by looking at you, I become more Krishna conscious just by looking at you. What to speak of hearing from you and then whatnot. Thank you so much for inviting me. And thank you all as well for inviting me here. And I'm back again to serve all of you. So Prabhuji has given me the topic, the benefits of spirituality or Krishna consciousness in young age. So we'll try to have a discussion on this topic. All right, so let's begin. So I'll offer some prayers and then we begin. Om Agyan Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunvidam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Hadadam Yena Nati Satantam Vandeham Shri Guru Shri Uttapatagamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagalata Shri Krishna Karnatascha He Krishna Karuna Sandhurina Bandhujapate Gopesha Kapitata Namosati Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Devi Padamami Haripuya Vancha Kalpura Supasan Devi Chaitana Pavani Vajay Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Great, wonderful. So the topic is very interesting, which we are going to discuss today, is that importance of spirituality or Krishna consciousness in young age. Very, very vital topic, actually. Because spirituality often is seen as an after-retirement business. Once we are retired, we are free from all the services, we are absolutely vela, and we are absolutely got nothing to do. We are idle, and then what to do? Well, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम. So then people then begin their spirituality in their far out old age. But what happens in old age? Actually, there's very nice, interesting conversation between Birbal and Akbar. So Akbar said, well, when somebody becomes old, he naturally becomes spiritual, man. He naturally becomes spiritual. Birbal said, no, Jahanpana, it is not like that. A body may become old, but the desires remain young. So that's why it is not that in old age, all of a sudden there is a ringing of the bells and the person becomes spiritual. Wow. Is it like, no. I said, no, come on, Birbal, I don't believe you. Come on, what are you saying? Is that really? And then Birbal said, Jahanpana, please give me a chance. Let me practically demonstrate to you that it actually happens this way. Acha, really? Yeah. So Birbal took him to one person. And then he said, okay, there is one person, he's on his deathbed. Anytime he can leave his body. Anytime. Okay, please, our humble request to please give to speak in Hindi only. Hindi बोल दे दो, हिंदी बोल देंगे. हम तो भक्तों की खुशी देखते हैं. तो क्या करना है मालिक? हिंदी, इंग्लिश.
वो चलेगा प्रभु जी, हिंदी इंग्लिश मतलब। Okay, mix. Okay, all right, mixed vegetable. Great though. ठीक है जी. So उसने कहा जहां पर आप चलना ही है तो देखिए आपके साम्राज्य के अंदर there is person who is lying on the deathbed, मरने वाला है वो, एनी टाइम यू कैन लीव. तो ऐसा करिए एक बार उसका हालचाल पूछने चलते हैं. लेकिन ना एक चीज और करिए, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग योर डॉटर अलोंग विद यू. आपकी बेटी के साथ चलते हैं. तो बेटी बेटी क्या करेगी? चलिए तो जहां पर ना चलिए चलिए लेके गए, वरना मर रहा था. हाँ हाँ हाँ. तो अकबर आया उसमें, अरे हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल है? हैं? अरे जहां पर ना आप आ गए. अरे हाँ जी सब ठीक ठाक है, दवाई वगैरह ले रहे हैं आप? बस अब तो मरना ही बाकी है. अब जैसे उसकी नजर पड़ी बेटी के ऊपर, बेटी बड़ी सुंदर थी, तो देख रहा था बेटी को, बातें कर रहा था अकबर से, देख रहा था बेटी को, बातें कर रहा था अकबर से, देख रहा था बेटी को, बातें कर रहा था अकबर से. तब उस वक्त बीरबल ने कोनी मारी, जहां पर ना उसकी आंखें देखे किस तरफ है. कहते हाँ वही मैं देख रहा हूँ, इसकी आंखें टिकी हुई हैं मेरी बेटी की, और मरने वाला है वो, कुछ नहीं कर सकता. अगर उसको दे दी भी जाए, दे भी देखे, मेरी बेटी आज से तेरी होगी, ले जी, कुछ नहीं कर सकता वो. ही इज अबाउट टू डाई. So in old age, somebody would become spiritual on its own all of a sudden. That's not really. ऐसा होता नहीं है. तो इसलिए spirituality के लिए हमें old age की वेट नहीं करनी चाहिए. Anytime, anything can happen. I remember there was one guy. He was doing his MBBS और फाइनल ईयर में था. तो हमारे यहाँ आया करता था, 2-3 साल उसको हो गए थे आते आते, और हमारे फंक्शन को ज्वाइन किया था. तो जन्माष्टमी आई, तो जन्माष्टमी में ऑफ कोर्स वी हैव गॉट ह्यूज फेस्टिवल. तो दोस्तों ने बोला यार यार तू आ रहा है यार. कहते कहाँ पर? कहता है यार हमें डांडिया अरेंज किया हुआ है, लड़कियां वड़कियां होंगी, तन्ना दिन था करेंगे ना, आजा. कहते नहीं यार मेरे को ना वो इस्कॉन टेम्पल में ना बुलाया सेवा के लिए, तो मैं वहां जाऊंगा, तो कीर्तन वगैरह होगा ना. कहता अबे तू क्या कर रहा है भाई, इस उम्र में तो कीर्तन भजन करेगा यार तू, मतलब यार हद है यार, मतलब क्या बात कर रहा है तू. आजा यार डांडिया में नाचेंगे कभी इसके साथ, तन्ना दिन था, कोई दूसरे के साथ और क्या, नहीं तो कम ऑन मैन. यार और ना, अबे चलना. चलूं क्या? अरे कल चले जाइए वहां पर यार, मंदिर तो 365 दिन खुला हुआ है, डांडिया तो साल में एक ही बार होना है, चल चल चल. अच्छा चलो चलते हैं. एंड देन he went to Dandiya. He did not come to Janmashtami. He went to Dandiya. अब डांडिया खेलने के लिए चला गया, वो करते कराते खाते पीते दिन रात के 12-1 बज गए. अब 12-1 बजे जब बज गए तो 1 बजे अपनी बाइक पे था, बाइक पे चला, तो चलते चलते उसको ना बाइक पर ही नींद आ गई. और जब बाइक पे नींद आ गई उसको इस तरह से, he just banged into a wall. और उसका जो सर था वो दीवार में जाके घुस गया. He died on the spot. On the spot he died. So anytime death can come, anytime. एक बार दोस्त था, वो ना योगासन सिखाया करता था. पार्क में होते ना आप योगाचार्य, आइए चलिए हम चक्रासन करते हैं, हाथ पीछे लेकर के जाइए. So he used to teach yoga. तो इसमें उसने ना सिखा रहा था शीर्षासन. शीर्षासन में करता है सर ऐसा करके और टांग ऊपर होती है, इस तरह से वो शीर्षासन लगा. तो शीर्षासन लगाया, शीर्षासन लगा कर बोलता है देख रहे हैं आप, शीर्षासन लगा करके लाभ होता है धाड़. शीर्षासन से लाभ होता है धाड़, ये क्या हो गया? उन्होंने उठाया वो भाई, उसको तो हिल डुल नहीं रहा, उसको तुरंत लेकर के अस्पताल लेके गए. वहां पर डॉक्टर ने कहा इज डेड, इज नो मोर. ऐसा डेड? अच्छा खासा बंदा हमको पार्क में योगा सिखा रहा था, एकदम से डेड कैसे हो गया जी? डॉक्टर ने कहा जी ये डेड है, ऑन द स्पॉट डेड हो गया, इनको ब्रेन हैमरेज हुई है. एक्चुअली से जब शीर्षासन लगाया था, सर नीचे था पांव ऊपर था, तो ब्लड का इनफ्लो सर के ऊपर आया और उसी वक्त वहीं के वहीं ब्रेन हैमरेज हुई. डाइड ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट. बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है. जैसे आजकल लोग कोविड से बहुत डर रहे हैं, सर कोविड हो गया मर गए तो, कोविड हो गया मर गए तो, कोविड हो गया मर गए तो सर ऐसे ही मरोगे तो वैसे मर जाओगे. जिसको जो मरना है उसको प्रारब्ध लिखा है कि उस वक्त उसको शरीर तभी छोड़ना है उसको. दैट्स इट. हालांकि ओवरऑल डेथ रेट कम हुआ है समाज के अंदर, 27% डेथ रेट हैज कम डाउन. तो जो लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट से नहीं मर रहे, मलेरिया से नहीं मर रहे, कैंसर से नहीं मर रहे, कोविड से कुछ मर रहे हैं तो मर रहे हैं. ओवरऑल डेथ रेट कम हुआ है. नाइस. लेकिन एक्चुअली जब जिसको जाना है तो तब तो जाना ही है. तो इसीलिए कोई ये सोचा है नहीं नहीं नहीं
ये कोविड है, सब बचे रहना चाहिए, कोविड नहीं होगा तो हम अजर अमर हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, तब जिसको मरना है सब मरना ही है, दैट्स इट। सो हियर माय फ्रेंड, शीर्षासन करते करते मर गया वो, ऑन द स्पॉट। शरीर में कोई बीमारी नहीं उसके, कुछ भी नहीं, एकदम स्लिम ट्रिम चकाचक टनाटन एकदम, died on the spot. So death can come at any moment. So we should not plan for spirituality in fact end of life. तो बुढ़ापे में जाके हम पढ़ेंगे, हम करेंगे इसको, no way. लेकिन ये यूजुअली हम अगर कोई काम करते हैं तो तब करते हैं जब उससे कुछ बेनिफिट्स हमको पता लगते हैं, then we do that particular task, right? तो वाला स्पिरिचुअलिटी, इसका क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है that spirituality gives us strength to fight against addiction. किसी प्रकार की बुरी आदतें और नशे जो होते हैं वो छूट जाते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे चाय का बड़ा शौक था। तो मेरी एक माँ अगर कभी पूछती थी, पुत्र चाय पिएगा तू, तो मैं कहता था पूछा मत करो, जब बनाया करो तो बना दिया करो, पूछा मत करो बेटा पिएगा नहीं पिएगा। बाय डिफॉल्ट हाँ है, चाय तो हम पिएंगे ही पिएंगे। तो मैथ्स और फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, चाय की चुस्कियां मारा करते थे, मैथ्स और फिजिक्स की प्रॉब्लम चलेंगी, चाय की चुस्कियां चलेंगी। थर्मस रखा करता था मैं, थर्मस से चाय ली पी, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व चल रही है, फिजिक्स चल रही है, मैथ्स फिजिक्स, कभी कभी केमिस्ट्री भी करता था, लाइक दैट। तो पहली बार जब मैं इस्कॉन आया तो मैंने पूछा भाई आप लोग करते क्या, अभी इस्कॉन के डिवोटीज है, आप लोग करते क्या? मैंने कहा हम लोग हरे कृष्णा करते हैं। मैंने कहा हरे कृष्णा वो क्या होता है भाई? तो उन्होंने बताया भाई ऐसे करते हैं, माला करते हैं इस तरह से। ओ आप लोग कितनी करते हैं? उन्होंने कहा हम तो 16 करते हैं, लेकिन अभी आप नए नए आए हो, आप 2 माला करो। अब ये चीज मेरे को बड़ी टच हो गई। मैंने कहा अच्छा बच्चों हमारी कच्ची मिट्टी है कोई कि हम 2 माला करेंगे? मैं कैसे करते दिखाओ जरा। मैंने ली माला ली, ठीक है थैंक यू वेरी मच। मैं ऊपर मंदिर में गया, पहले दिन मैंने 16 माला कर दी। 16 माला करके मैं नीचे, मैंने कहा लो जी 2.5 घंटे में हो गई 16 माला। कहता अच्छा आपने पहले दिन 16 माला कर दी? मैंने कहा हाँ जी 16, उसमें क्या है, 16 माला कर दी। अब माला करेंगे, देखो नाप तो पहुंचेगा उसका। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं जब घर पे गया तो घर पे ना मेरी माता श्री ने कहा बेटा मैं चाय लेके आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। कहते तेरे को चाय नहीं पीनी? तू मेरा बेटा ही है ना, ये एक्सचेंज हो गया किसी से? मैंने कहा क्यों जी क्या हो गया? कहता तू और चाय नहीं पी रहा। मैंने कहा पता नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का, मेरे को चाय पीने का मन नहीं है। तो भगवान का मैंने नाम लिया, जस्ट सी मेरी वो एडिक्शन जो कि इतनी गहरी थी, जिसके लिए मैंने बोला हुआ था भाई पूछना नहीं है आपको, बनानी है। हाँ मेरी ऐसी थॉरो एडिक्शन, इट वाज वाइप्ड आउट। यस इट वाज वाइप्ड आउट। तो हम जब मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर आते जीवन के अंदर, हमारी आदतें जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं सालों साल से, कुछ आदतें तो तुरंत छूट जाती हैं, और कुछ जो बहुत गहरी आदतें हैं वो थोड़ा समय लेती हैं लेकिन छूट तो हो भी जाती हैं। ऐसा होता है। One of our devotee, he is in NIT, one of our very prestigious NITs in India. वहां पर था, तो उससे पहले उसके साथ क्या था, बिफोर कमिंग टू भक्ति, इसको पॉर्न एडिक्शन थी। और हर रोज ये रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक वुड वॉच पोर्नोग्राफी 7 घंटे एवरी डे। मतलब सारा डेटा फूक दिया करता था, सारा वाईफाई कनेक्शन का सारा डेटा, 90-95% डेटा वॉचिंग पॉर्न, दैट्स इट। तो हुआ क्या, हमारे प्रोग्राम में आया, उसने थोड़ा प्रसाद वगैरह पाया, थोड़ा कीर्तन सुना, नाचा वगैरह, और उस रात उसने पॉर्न नहीं देखा, बिकॉज नाच नाच के इतना थक गया था वो कि अपने कमरे में जा करके सीधे वो सो गया। 10 बजे वो सो ही गया वो, और सुबह 5 बजे 5:30 बजे वो उठा। वो टाइम जो पॉर्न देखने के लगाया करता था, इस बार उसने भगवान के नाम पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा दिया। उसके बाद उसने उस रात को फिर से पॉर्न खोला। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, कहता है मैं ना एक ही चीज बार बार देख रहा हूँ, सिर्फ शक्ल चेंज हो रही है, पर एक्चुअली मैं एक ही चीज बार बार देखे जा रहा हूँ, मैं क्या करके आ रहा हूँ एक्चुअली में। और जो सड़क पे जो कुत्ते बिल्ली कर रहे होते हैं, यहाँ इंसान कर रहा है, बस ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं। He got this intelligence and that I'm just wasting my time. What am I doing? And very soon he gave up all of that watching porn. कहता है मैं तो गधा नंबर 1 हूँ यार, मैं एक ही चीज को बार बार देखे जा रहा हूँ। ऐसे जितने भी इसके अंदर इमेजेस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जो कुछ भी इसके अंदर, ये सब सेम काम ही कर रहे हैं, सिर्फ शक्ल अलग अलग और नाम उनके अलग अलग है, बस दैट्स इट। मैं कर क्या रहा हूँ यार मैं। पर ये इंटेलिजेंस आई कैसे?
ये इंटेलिजेंस आई उस एक दिन के प्रोग्राम से जो कि हमने रात को ऑर्गेनाइज किया था, शाम को ऑर्गेनाइज किया था, रात को गया, थक हार करके सो गया. So single day of spirituality helped him understand that by watching porn, I'm just wasting time. I'm wasting my energy. That's it. और मैं कुछ नहीं करना. And today that person is a very regulated devotee. और आज वो NIT में preaching करता है और preaching करके वहाँ बच्चों को समझाता है how to get rid of this addiction from porn. क्योंकि आज youngsters हैं, they are so much into this addiction. Oh my God, so much rampant. लेकिन बुद्धि कैसे आती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों में पढ़ना है, किन चीजों में नहीं पढ़ना है. It comes by spirituality. Wow. So fighting with addiction, any kind of addiction is there. Similarly, there is one IAS officer. She is here in Delhi. और मैं उससे मिलने के लिए गया था. उसने कहा प्रभु जी एक समाधान कर दीजिए मेरी लाइफ में. मैंने कहा बताइए. कहते मेरे को नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स, उसको नेटफ्लिक्स की आदत लगी हुई है क्योंकि उसका हाई डेफिनेशन मूवीज आती हैं, लेटेस्ट मूवीज होती हैं. आई लाइक टू वॉच मूवीज वन आफ्टर अनदर. मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ढंग का नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम वॉचिंग वीडियोज ऑन नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम वीडियोज, डिज्नी हॉटस्टार. मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ. Okay, all right. Now shall I request you something? And then I gave her some simple tips about spirituality, about chanting the names, coming to the temple, reading the Gita. And recently, around say 10-15 days पहले की बात है, she said actually there is drastic improvement in my life. Now I still am watching a movie on Netflix, but once in a week. Now no more week. और once in a week भी देखती हूँ कब, जब फैमिली वाले देख रहे होते तब देख लेती हूँ. So she has improved so much. So fighting against addictions इसलिए बहुत जरूरी है spirituality. Second benefit which we get is fighting negativity. हम नकारात्मकता से लड़ पाते हैं. You know, sometimes we have negativity. हर चीज को नेगेटिव देखना. ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया, वो समझता है क्या अपने आप को. So people are naturally negative. So that case नेगेटिविटी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है spirituality. बहुत से पहले की बात है, अराउंड 2007-2008 की बात है. There was one boy we met in IIT Delhi. और IIT में हम लोग जाया करते थे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया करते थे. तो वहां पर एक लड़का आया हमारे स्टॉल पर. कहता आप लोग कौन है आप लोग. उन्होंने कहा हम हरे कृष्णा वाले हैं. भाई क्या हो गया यार, नाराज हो हमसे. कहते क्या होता है ये हरे कृष्णा, क्या होता है ये. उन्हें बताया इट्स अ वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी. मन शांत होता है इससे. रियली, मन शांत होता है इससे. मेरा मन शांत होगा. उन्होंने कहा हाँ सबका होता है, आपका भी होगा. कहता अगर नहीं हुआ ना, अगर नहीं हुआ मैं आयरन की रॉड लेके आऊंगा, तोड़ दूंगा आपका सब कुछ. ये नौटंकी लगा के रखी है आप लोगों ने यहाँ पर. मैंने कहा भाई ठीक है, आप हरे कृष्णा करिए और आइए आप हफ्ता भर 10 दिन बाद आ जाइए. अगर आप कुछ सुधार ना आए, हम खुद यहाँ खड़े होंगे. आप टेबल पे भी लोहे की रॉड मारना और हमारे सर पे ही मारना. ठीक है, बकवास कम करिए आप लोग, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है. हाँ नहीं तो. And then this person, we told him how to chant Hare Krishna. तो उसने फिर एक दो माला करनी शुरू की, करते और एक्चुअली उसकी लाइफ में बदलाव आ रहा था. सो 15-20 दिन क्या, एक्चुअली 6 महीने हो गए उसको हरे कृष्णा करते हुए. सो 6 महीने बाद ना हमारा दिसंबर का महीना आया. और दिसंबर के महीने में ना हम लोग क्या करते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता. सो हिंदू कॉलेज है ना, हम हिंदू कॉलेज के बाहर भी स्टॉल लगाते, तो वहां पर उसको हमने भेजा क्योंकि अगर आप सेवा करना चाहते हैं. हाँ ठीक है बिल्कुल. तो थोड़ी आपने भगवत गीता अपने हाथ में ली थी और रिक्वेस्ट कर रहे थे आप गीता लेना चाहेंगे, क्या आप गीता लेना चाहेंगे, ऐसा कर रहा था वो. तभी ना एक लड़का आया वहां हार्ले डेविडसन और पेट में लात मारी और पेट में लात मार करके आगे चला गया वो. और सारी भगवत गीता नीचे गिर गई, ये भी नीचे गिर गया. हाँ, तो वहां पर कोई हिंदू कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उस हार्ले डेविडसन वाले को पकड़ लिया. उसको पकड़ करके लेकर के आया इसके पास. कहता हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वही है ना जो आपको लात मार के भागा था, हमने इसके हाथ पकड़ लिए हैं, आप मारो इसको, मारो आप इसको. और उस वक्त ये व्यक्ति जिसको कि हुआ सो शॉर्ट टेम्पर, जिसको इतना जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, उसने कहा नहीं छोड़ दो इसको, जाने दो इसको. मुझे कहा अरे श्योर, ये आपको लात मार के भागा, आपकी गीता गिरा दी इसने नीचे, आप भी नीचे गिरे पड़े थे, आपके पेट में लगी. कहता हाँ पेट में दर्द हो रहा है मेरे, इसने बहुत जोर से लात मारी मेरे को, पर छोड़ दिए, जाने दीजिए इसको, जाने. ठीक है यार. अब ये देखकर हुआ क्या, जितने भी वहां लड़के थे, जो तमाशा अच्छा खासा हो गए थे, जितने वहां लड़के थे सबने भगवत गीता खरीद ली, बिकॉज दे कुड सी सच अ जेंटलमैन. उसके बाद ये लड़का अपने रूम में आया और रूम में आकर के इतना रोया
कहते मैं तो इतना बदल गया, मैं इतना बदल गया। अगर ये काम मेरे से किसने पहले अगर किया होता, मैं पहले उसको माँ बहनी गालियां बकता, मैं उसको लात मुंह से मारता, मैं क्या क्या नहीं करता। पर मैंने बोला उसे जाने दे, तो मैंने कैसे कर दिया ये, हाउ इज इट पॉसिबल। वो हैरान था। ये जो नेगेटिविटी है, जो ग्रज है, एंग्विश है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, आक्रोश है, इस सब से मन शांत रहता है। जो नेगेटिविटी है वो शांत होती है, ऐसा होता है। ऐसे मुंबई में हमारे एक डिवोटी है, वो बता रहे थे वो भक्त कैसे बने। ऐसे बहुत नेगेटिव, उनमें बहुत नेगेटिविटी थी, बट बहुत डिप्रेशन, लाइफ में क्या करना है, जी के क्या करेंगे, जिंदगी में ना कोई रंग है ना ढंग है, जिंदगी कटी पतंग है, क्या करेंगे जी करके यार। हाँ। तो सोच ही रहे थे कि ना कभी समुद्र में जाके कूद के मर जाऊं, क्या करूं। तो समुद्र के किनारे बैठ करके सोच रहे थे कि ना मरने का सबसे कम दर्दनाक तरीका कौन सा होगा, ये चीजें वो ना अभी सोच रहे थे इस बारे में। तभी ना वहां पर एक गाना बजा, लेके चलूं मैं तुझको एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। उस वक्त गाना निकला था नया नया। तो उसने कहा लेके चलूं मैं तुझको एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसी कोई जगह होगी यार, ऐसी कोई जगह हो सकती है। तो उसने बड़ी मुश्किल से ये जो सॉन्ग लिखा था जिसने बॉलीवुड में, उस लिरिक्स राइटर को अप्रोच किया, एंड ही वेंट टू द लिरिक्स राइटर। सर ये आपने गाना लिखा है, लेके चलो मैं तुझको एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। सर क्या आपने ऐसी जगह देखी है, आप बताइए कहाँ होगी ऐसी जगह। लिरिक्स राइटर ने कहा सर ऐसी कोई जगह नहीं है, सब जगह पर गम भी है, सब जगह पर थोड़ी बहुत खुशियां हैं। हम लोग क्या देखिए राइटर लोग हैं, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ऐसे गाने लिख देते हैं, पर ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं है। ओह, ऐसी कोई जगह नहीं है क्या? नहीं फिर भी ना ये गाना वो गाया करते थे, ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस लेकिन ऐसे राइटर ने तो बोला ये, उसने इमेजिन किया था। तो ऐसे ना अगेन जुहू बीच पे बैठे थे और सोच रहे थे ऐसी जगह यार काश होती, कितना अच्छा है। तभी ना वहां से हरे कृष्णा डिवोटीज कीर्तन करते हुए आ रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाच रहे थे वो, पसीने से तरबतर हो रखे थे, खिचड़ी बांट रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। यार ये है वो दुनिया। हाँ लेके चलो मैं तुझको एक ऐसी गगन की तले, जहां गम भी ना हो। देखो इनमें गम नहीं है, आंसू भी ना हो, इनमें आंसू भी नहीं है, बस प्यार ही प्यार पले। ये प्यार ये है। हाँ उनके साथ ही होली है, ये भी हरे कृष्णा करते करते मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचे, उन्होंने जिज्ञासा वगैरह की, पता किया दिस दैट क्या करते हैं आप लोग। करते करते भगवान के ऐसे जुड़े कि आज टुडे ही इज काउंसलर ऑफ सो मेनी डिवोटीज। वाओ। सो फाइटिंग नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से लड़ना हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस। एक और लाभ क्या मिलता है हमको स्पिरिचुअलिटी का, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। ऐसा जैसे हमारे ना मंदिर के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है प्रद्युम्न प्रिय प्रभु, और बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, 10,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है, बिग शॉट। और बहुत मेहनत भी करते आए भाई, 12-12 घंटे काम करना, 16-16 घंटे काम करना, मेहनत करते थे, वेरी हार्ड वर्क। लेकिन इनको हमेशा लगता है इतना पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए कमा रहा हूँ यार। 10,000 करोड़ बहुत होते हैं, किसी को भोगने को दिया जाए ना, तू भोग ले, तू पैसा ले और भोग ले, तो 10-15 करोड़ से ऊपर किसी को नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कैपेसिटी है नहीं किसी की। 10-15 करोड़ मैक्सिमम, घूमना फिरना ये वो दारू शारू कर 10-15 करोड़ से ऊपर है। पर 10,000 करोड़ क्या करेगा भाई आदमी, इसका पैसा है लेकिन पैसे का पता नहीं करना क्या लाइफ। और करते हैं 12-12 15-15 घंटे काम करते हैं, पॉलिटिशियन से मिलना, ब्यूरोक्रेट से मिलना, दिस दैट। जब ये द्वारका से जुड़े, तो द्वारका से जुड़ने की वजह से क्या हुआ, शानी हरे कृष्ण महामंत्र। अब जब उन्होंने जपा शुरू किया, जपा से लाभ ये होता था उनको कि जो काम वो पहले कर पाते थे 15 घंटे में, अब वो काम करने लगे 10 घंटे में, 5 घंटे बचने शुरू हो गए। वाह, तो कमाल है यार। और दूसरा कहते हैं कि ना मेरे को ना पैसा कमाने मजा आता है, क्यों? क्योंकि मुझको पहले क्लियर नहीं था कि ना मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, अपने लिए तो मुझे इतना पैसा चाहिए ही नहीं, तो किसके लिए कमा रहा हूँ।
लेकिन अब भगवान के मंदिर के लिए कमाना है मेरे को। यस, मुझे भगवान का मंदिर बनाना है, इसलिए मुझे कमाना है। मुझे भगवान का मंदिर बनाना है, इसलिए मुझे कमाना है। इसलिए अब मुझे पैसा कमाने में मजा आता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि ना हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। इवन बिग शॉट्स, जितने भी बिग शॉट्स हैं, इवन लाइक बिल गेट्स वगैरह, ये लोग मेडिटेशन करते हैं ताकि बाकी जो दिन भर की दिनचर्या है उनकी, उसमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अक्षय कुमार जैसे लोग सुबह सुबह उठते हैं, ये लोग भगवान का नाम लेते हैं, यस दे डू, एफिशिएंसी बढ़ जाती है इससे। होता क्या है, व्हेन वी डू मेडिटेशन एंड ऑल दैट, यहाँ स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारी जो सोच है, राइट, हमारी ब्रेन की कई सारी वेव्स होती हैं, उसमें अल्फा बीटा गामा वेव्स होती हैं। अल्फा इज वेरी रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ वेव्स, और रिलैक्स वे में होकर के हम जो कार्य करते हैं उसमें एफिशिएंसी कहीं ज्यादा होती है। वैसे कितने डिवोटीज हैं, दे हैव नोटिस्ड दैट कि अगर सुबह सुबह उन्होंने अच्छे से नाम लिया होता है, if they had taken the name of the Lord very nicely in the morning, the rest of the day they are far more efficient. ऐसा ये काम होना था, वो भी हो गया, वो था वो भी हो गया, ये था वो भी हो गया, टाइम बचा भी है। यार ये कैसे हो गया यार, काम भी सारे हो गए, टाइम भी बच गया यार, ऐसे कैसे हो गया यार भाई। तो सोचते हैं ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है। इसका सिंपल लॉजिक ये है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कृष्णा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, वी बिकम फार मोर एफिशिएंट। रीजन भी, हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं। जब चैंटिंग करते हैं वी स्ट्रगल टू फोकस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन भाग रहा उसको लेकर के, मन भागता उसको लेकर के, मन भागता उसको लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मन भागा फिर लेकर के आया उसको। इस तरह करते करते, इस एक्सरसाइज की वजह से क्या माइंड फोकस होना शुरू हो जाता है, और इस फोकस माइंड के साथ फिर आप जो भी करते हैं, यू आर वे टू गुड। मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में, when I was newly connected to Krishna consciousness, at that time मैं कॉलेज, after that I would go and to my library and then study there. पढ़ा करता था मैं वहां, पढ़ा करता 4 5 6 घंटा, sometimes sitting in library for 6 hours and studying, and because of which in university I scored 5th rank and I scored 91% marks. तो मेरे दोस्त बोला करते थे, भाई तू इतना घंटा कैसे पढ़ लेता भाई, हम लोग तो घंटा बच जाता हम लोगों का, तू 6 घंटे पढ़ लेता यार, कैसे करता यार तू ये। तो मैं बड़े गर्व से बोल पाता था, बिकॉज आई चैंट हरे कृष्ण इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू चैंट हरे कृष्णा। बस में आते हुए मैं भगवद गीता पढ़ा करता था, फिर कॉलेज में रह के कॉलेज की पढ़ाई, लाइब्रेरी में बैठ के कॉलेज की पढ़ाई, कम बैक एंड स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, ये मेरा शेड्यूल रहा करता था। लेकिन मेरा फोकस बहुत बढ़ गया आज, जस्ट बिकॉज आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा इन द मॉर्निंग, और मैं बहुत अच्छे से पूरे विश्वास के साथ, पूरे हृदय के साथ चैंटिंग करता था लाउडली इन द मॉर्निंग। उसका रिजल्ट होता था, आई वाज सो फोकस्ड दैट आई स्कोर्ड 91% मार्क्स इन माय ग्रेजुएशन एंड रैंक 5 इन यूनिवर्सिटी। बट क्रेडिट गोज नॉट टू मी, क्रेडिट गोज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो आवर एफिशिएंसी इंक्रीजेस, आवर फोकस इंक्रीजेस। ठीक है, एक और लाभ मिलता है, ठीक है। फिर एक और लाभ क्या मिलता है हमें, आवर रिलेशनशिप्स बिकम बेटर, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक लड़का आता है, उसका उसके माता पिता के साथ झगड़ा रहा करता था हमेशा, बिकॉज यू आर टू टपोरी, माता पिता वेरी कल्चर्ड वेरी ट्रेडिशनल, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स। अब somehow he came in touch with the devotees, आया मंदिर में, आया कोर्स में एनरोल किया उसने, and he started chanting हरे कृष्ण महामंत्र। Gradually he became so respectful to his parents कि सुबह उठ करके पेरेंट्स को बोलता था, चरण स्पर्श पिताजी, चरण स्पर्श माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता पिता बोलते हो, तेरे को क्या हो गया भाई, तू लुक्खा टपोरी, तू हमारे पाँव छू रहा है। हाँ, हमको ये सिखाया जाता है कि हमें बड़े बुजुर्ग के पाँव छूने चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ? तो हमारा ही बेटा है, किसने क्लोन बना करके को दूसरा भेज दिया है, कैसी भाषा बोल रहा है। सुबह उठ के माता पिता के पाँव छूने चाहिए, किसने बोल दिया तेरे को। कहता हमको ये बताया गया, हमारे गुरुजन के पाँव छूने चाहिए। सबसे ऊपर भगवान है और गुरु है, और फिर माता पिता भी हैं। माता पिता को सम्मान देने, बोले भाई तो बदल गया है तू, अरे बाबा अरे बाबा। उसके बाद उसके पेरेंट्स का रिश्ता इतना अच्छा हो गया अपने बच्चे के साथ, that when later on he decided, अभी वो ज्वाइन नहीं किया उसने, he decided to join full time as a ब्रह्मचारी। माता पिता ने बोला, बेटा जिस जगह तेरे को ऐसे संस्कार दिए गए हैं, तू अगर वहां रह के अगर भक्त बनता है, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। So parents have agreed, उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके that he will become a monk as a ब्रह्मचारी in our temple। लेकिन रिश्ते अच्छे होते हैं,
रिश्ते अच्छे थे। ऐसे हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों का आपस में बहुत झगड़ा वगैरह चढ़ा करते थे, दोनों एक दूसरे के बाल खींचा करते थे, चुड़ैल कहीं की ना है, भूत पिशाच कहीं की ना हो, तो दोनों एक दूसरे को ताने माने मारा करते थे इस तरह से। तो दोनों खूब लड़ाई वड़ाई चला करती थी। तो दोनों अपना कोर्ट पहुंचे, कोर्ट पहुंच करके दोनों ने अपना याचिका डाली, कहते हमें डिवोर्स ही है जी, मेरे से आदमी झेला नहीं जाता है। उसने कहा मेरे से तू नहीं झेली जाती, मेरे से तू नहीं झेला जाता। मैं तो वहां वो था मजिस्ट्रेट, उसने कहा रुके रुके रुके, ठीक है आप लोग अगर डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन आप लोगों को 50 दिन ये मोहलत दी जाती है, अगर आप आपस में रजामंदी करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब नहीं नहीं करनी थी, कौन रहेगा चुड़ैल के साथ, कौन रहेगा चुड़ैल के साथ, क्या मैं चुड़ैल तो भूत पिशाच है, कौन रहेगा भूत पिशाच के साथ, करो जी रफा दफा करो, हमें नहीं करना, 50 दिन के लिए वेट नहीं करना हमको। देखिए ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या भाड़ में जी, प्रोसीजर क्या भाड़ में, आप फाइनल करिए। मजिस्ट्रेट आप लोग प्लीज जाइए, आप 50 दिन की मोहलत, कहता है मैं शक्ल ना देखूं 50 दिन की, भाग यहाँ से, भाग यहाँ, मैं अब भाग यहाँ से, भाग आए तो भाग यहाँ से, चल 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 चल। अब ऐसा इन लोगों का हाल है। फाइनली हुआ क्या, जो लेडी थी, जो माता जी थी, जो उसमें जो पत्नी थी, शी केम टू इस्कॉन चौपाटी, और जो हस्बैंड था वो ही वेंट टू इस्कॉन जुहू। दोनों ने वहां पर क्या किया, अपना गीता कोर्स में एनरोल कर लिया, चैंटिंग हरे कृष्ण शुरू कर दिया। 50 दिन दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, ना फोन किया, कुछ नहीं। 50 दिन बाद फिर से आए कोर्ट में, कोर्ट में दोनों गले में माला टंगी हुई थी, ठीक है जी, और तिलक लगा हुआ था। कहते नकल सी बंदर कूड़े के अंदर, ये तिलक विलक कहां से लगा लेते नौटंकी बाज, अरे इस्कॉन जुहू जाता हूं मैं, तू नकल सी बंदर है, मैं नकल सी बंदर, मैं इस्कॉन चौपाटी गई हूँ, समझ रहा है तू, मैं चौपाटी, इस्कॉन चौपाटी। अच्छा तू इस्कॉन चली गई, नकल सी बंदर, क्या सीखा तूने वहां पर, है हमारा गीता कोर्स चल रहा है वहां पर, इतना बढ़िया है भगवत गीता, अमेजिंग किताब है भगवत गीता, कभी तू पढ़ता है गधे कहीं के, कहते हाँ मैं भी गीता कोर्स में एनरोल किया है मैंने, मैं भी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ आजकल। अच्छा बंदर लोग भी आजकल गीता पढ़ने लगे, अरे मैं बंदर नहीं, तू बंदरिया होगी। हाँ नहीं तो और क्या करती है तू वहां जाकर, तू इस्कॉन चौपाटी में, मैं तो हरे कृष्णा करती हूँ, ये देख मेरी जप माला है, ये मेरी माला है जिसमें जप करती हूँ मैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तू क्या करता है, कहता है अरे मैं भी करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अच्छा तू भी करता है, अच्छा कैसा लगा तेरे को हरे कृष्णा करना। तो हस्बैंड ने बोला मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, एकदम शांत हो गया यार मैं, बहुत बढ़िया। तेरे को कैसा लगा, तो वाइफ ने बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा, शांत हो गया एकदम मैं। अच्छा तो तू ये गीता वगैरह पढ़ती है तू, तो समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भगवत गीता है, पता लगा भगवान कौन है, मैं कौन हूँ मुझे पता लगा मुझे। कैसा लगा तेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुझे कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह क्या बात है। तो फिर हस्बैंड वाइफ ने कहा एक दूसरे को कि हमारी शादी को 8 साल हो गए, और पिछले 8 सालों में हमने एक भी चीज कॉमन नहीं देखी, तेरे में मेरे में कुछ भी कॉमन नहीं था पिछले 8 सालों में, लेकिन 8 साल बाद कुछ कॉमन निकला तेरे में और मेरे में। ये चैंटिंग हरे कृष्णा तेरे को पसंद, मेरे को पसंद, भगवत गीता तेरे को पसंद, मेरे को पसंद। क्या करें, एक और ट्राई दे अपने रिश्ते को। तो वहीं से ये लोग यूटर्न मार के घर की ओर अपने रिश्ते को एक और ट्राई देने के लिए, और उसके बाद दोनों में इतना प्यार हुआ, दोनों में इतना स्नेह हो गया एक दूसरे के लिए कि दोनों बहुत ही अच्छे से भक्ति करने लगे। और आज कई सारे जो ऐसे पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे बाल नोचे हुए होते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं ये, कहता अरे तुम लोग तो कुछ नहीं हो, हम लोग पीएचडी थे इसके अंदर, हाँ कुछ नहीं हो तुम्हारा, हम तो इसमें उस्ताद रहे एकदम। उसके बाद ये ऐसी काउंसलिंग करते हैं उनकी, और आज कई सारे गृहस्थ भक्त हैं उनके घर संवर गए इन दोनों की वजह से, जो कि कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस ने क्या किया, इनके रिश्तों को अच्छा कर दिया। तो हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं जब हम भक्ति करते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। हमारे एक डिवोटी यहाँ पर, उनकी वाइफ लंच दिया करती थी, और लंच में अगर हल्की सी भी कमी रह गई ना, कुछ मतलब दही डालना भूल गई, अचार डालना भूल गई, कुछ हल्का सा गलती हो गई, नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया, उसी वक्त फोन मिलाएंगे, कहते हैं हाँ क्या हो गया अंधे की औलाद, तेरे को पता है ना दही खाता हूं मैं, दही खाए तेरा बाप ला के देगा। ये करते थे उसके साथ। जब भक्त बन गए उसके बाद दही क्या,
एक दिन तो लंच बनाना भूल गई वो, तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाजार से थोड़े फल खरीद के खा लूंगा, कोई बात नहीं। रिश्ते अच्छे हो जाते हैं जब हम भक्ति करते हैं तो। यस, रिलेशनशिप्स बिकम बेटर। एक और लाभ मिलता है, पीस ऑफ माइंड, मन शांत होता है। आप देखिए जितने कई बार लोग हरे कृष्णा करते हैं ना, हरे कृष्णा करते करते उन्हें क्या होता है, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। पर ऐसा क्यों होता है? जब तक मन को सुकून ना हो नींद नहीं आती। यानी चैंटिंग हरे कृष्णा करते ही मन को सुकून मिल जाता है, सो वी टेंड टू हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हालांकि चैंटिंग का लक्ष्य जो है वो सोना नहीं है, लेकिन मन रिलैक्स हो गया भाई। ऐसे कई लोग हैं जो रात को गोलियां खाया करते थे, एल्प्रेक्स वगैरह, एल्प्रेक्स से पराठे बना के खाया करते थे, लेकिन आज कहते हैं मन इतना शांत हो गया है, रात को सोते हैं, सर सिरहाने को बाद में छूता है, नींद पहले आती है। वाह, ऐसा कैसे हो गया जी? ऐसा इसलिए हो गया, रीजन बीइंग हमारा मन शांत हो गया। एक्चुअली मन क्या है? मन ना एक कबूतर की तरह है, कबूतर उड़ता है ना, ऐसे ऐसे उड़ता है वो, राइट? इस तरह से मन भी उड़ता है। मन के भी दो पंख हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। वर्तमान काल में मन नहीं रहेगा, यहाँ तो भूतकाल होता रहेगा, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने मेरा अपमान किया था, देख लूंगा उसको, देख लूंगी उसको, कीड़े पड़े उसको। हाँ, नहीं तो भूतकाल। यहाँ भविष्यकाल, भविष्य में क्या होगा, कोविड की वजह से नौकरी चली गई, पता लगा हम सड़कों पे आ गए तो, भीख मांगनी पड़ गई तो, भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तो यहाँ तो भविष्य के बारे में, यहाँ भूत के बारे में, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। पास्ट भी कैसा रहा है, बड़ा टेंस, फ्यूचर कैसा रहा, बड़ा टेंस। इन दोनों के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट क्या हो गया, वो भी टेंस। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट भी वही रहा है, टेंस, फ्यूचर भी वही रहा है, टेंस, प्रेजेंट भी क्या है, टेंस। सियापा। तो इसीलिए भगवान का नाम लेकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस की कैंची से हम क्या करते हैं, इसके दोनों पंखों को काट देते हैं। ये यस, जब दोनों पंख कट जाते हैं मन के, तो मन कहाँ रह जाता है, वर्तमान में, वर्तमान में। तो इस प्रकार से मन जो है वास्तव में शांत होता है। तब लोग हमें बोलते हैं, देखिए आप थोड़ा बताया करिए, कुछ अलग सोल्यूशन कुछ बताइए। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन बताते हैं, आप ये बताते हैं बस भक्ति करो उससे सब सही हो जाएगा। ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए अगर कोई तूफान में, मुझे तूफान, यहां से लहरें, यहां से लहरें, यहां से लहरें, यहां से लहरें। अब एक है मैं लहरों से लड़ूं, यहां की लहर आई तो क्या तेरी, हट जाए यहां से, हट जाए यहां से। एक तो ये तरीका, मैं लहरों से लड़ूं, पर कुछ समय बाद क्या होगा, मैं थक जाऊंगा, मैं लड़ते लड़ते थक जाऊंगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं लहरों से लड़ने के बजाय हेलीकॉप्टर से एक रस्सी हो ना, अगर आ रही हो, उस रस्सी को पकड़ लो भैया। हाँ, रस्सी को पकड़ लेंगे ना, तो एक तो लहरें कम सताएंगी, और लहरों से नहीं लड़ना मेरे को, उसको रस्सी को पकड़ने में जान लगानी है। ये रस्सी क्या है? ये रस्सी है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस की रस्सी को हम पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए हम समस्याओं से नहीं लड़ रहे होते, समस्याओं के परे जा रहे होते, समस्याओं के से लड़ नहीं रहे होते, समस्याओं के परे जा रहे होते हैं, राइट? तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम समस्याओं का समाधान कर सकें, उसके लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। और मन हमारा शांत होता है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, ऐसा। और मंत्र के लिए बताया गया, मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे वही है वास्तव में मंत्र, ऐसा है। और कई लोग इनको मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, वाह, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, ऐसा, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। हमारा एक मंदिर है जुहू में, जो हमारा मंदिर है, वहां पर ना, मान लो कोई ना समस्या लगा रहा करती थी, कभी ये समस्या, कहीं वो समस्या, कभी ये समस्या, कभी वो समस्या। तो उनके वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ा मतलब सोचा, मतलब क्या करें, बड़ी समस्याएं आती मंदिर में, कभी ये समस्या, कहीं वो समस्या, क्या किया जाए। तो तब उनको याद आया, हमारे फाउंडर आचार्य ने एक सुझाव दिया था, वंस इन अ वीक देयर शुड बी 24 आवर हरिनाम। हफ्ते में एक दिन जो है 24 आवर हरिनाम होने चाहिए, सबको आना चाहिए उसमें। ओके जी, ऐसा हुआ। तो जब भी कोई समस्या लेके आता था, तो ये प्रेसिडेंट उनसे बोलते थे, क्या मैं आपसे मंडे को मिल लूं क्या, मंडे को? कहता हाँ ठीक है, मंडे को मिल लीजिए। कहता हाँ, लेकिन एक और चीज है, वो संडे को ना हरिनाम है, उसमें जरूर आना। कहते क्या?
संडे को हरिनाम जरूर आना, फिर मंडे को तुमसे मिल लूंगा, ठीक है? ऑलराइट, बाय। अब ये व्यक्ति संडे को जब आता था, भगवान का नाम लेता था, तो जो इसकी शिकायतें होती थी, ये वो दिस दैट, शिकायतें चले जाया करती थी। इनमें से 90% लोग मंडे को आते ही नहीं थे, मंडे को आते ही नहीं थे। क्यों जी? मंडे को जी वो इसलिए नहीं आए हो कि शिकायतें रही नहीं, मंडे को आए नहीं। और जो आते भी थे कहते देखो ऐसा है, हमें तो बस अपनी बात सुनानी थी, और देखो कुछ हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो ठीक है, दैट्स ओके यार, दैट्स ओके। मन शांत हो गया जी। वाओ! भगवान भगवद्गीता के अंदर बता रहे, अर्जुन ने पहले बताया भगवान मन बड़ा अशांत है, भगवान चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवज्जनम, मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है मन। शांत। तो भगवान कहता है कि चंचल है ना, अरे बच्चे भी तो चंचल होते हैं, इट्स ओके। जैसे बच्चों को संभालते हैं ना, ऐसे इसको भी संभाल लो, चंचल है, इट्स ओके, बच्चा है, चंचल है। अर्जुन का प्रभु चंचल ही नहीं है, प्रमाथी भी है, पागल भी है। बच्चे पागल थोड़ी होते हैं, चंचल होते हैं लेकिन पागल नहीं होते, तो प्रमाथी भी है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी, तो प्रमाथी है, पागल है क्या? अरे पागल लोगों क्या करते हैं, पागल खाने में जंजीरों से बांध देते हैं, और क्या? इसको तुम क्या करो, जंजीर से बांध दो, और क्या? नहीं तो प्रमाथी। कहते नहीं जी, बलवत है, शक्तिशाली है ये बहुत। हाँ तो जंजीरें तोड़ देता है ये। अरे कोई बात नहीं, एक बार तोड़ दी, कितनी बार तोड़ेगा? दोबारा जंजीरें बांध दो उसको। तो अर्जुन ने कहा दृढ़म, अरे दृढ़ है बहुत, फिर तोड़ देगा, फिर बांधो, फिर तोड़ देता है ये। तो 4 क्वालिटीज मन की बताई। चंचलम ही मना कृष्ण, प्रमाथी है, पागल है ये, बलवत बहुत शक्तिशाली है, दृढ़म दृढ़ है, ऐसा है ये। मन के लिए एक और एनालॉजी आती है कि अगर कोई बंदर हो, अगर बंदर कितना चंचल होता है, ऊपर से बंदर को बिच्छू काट ले, ओ लो, फिर क्या हाल होगा उसको? बिच्छू तो काट ही रहे, साथ ही ऐसा बंदर जिसने दारू पी हो, लो, ना सिर्फ उसको बिच्छू काटा हो बल्कि दारू पी हो, उसको भूत भी चढ़ गया हो, सोचिए वो बंदर क्या हो जाएगा। ऐसा है हमारा मन। ऐसे मन को भला कैसे संभालेंगे जो कि पहले बंदर के स्वभाव का है, बिच्छू भी उसको काटा हुआ है, दारू उसने पी हुई है, भूत उसको चढ़ा हुआ है, लो, ऐसे मन को भला कौन संभालेगा? तो इसलिए अर्जुन ने बोला चंचल भी मना कृष्ण प्रमाथि बलवज्जनम, क्या करूं भगवान इसको? मैं वायु को कंट्रोल करता हूं, ये तो मतलब मन तो मत पूछिए भगवान। तो भगवान ने फिर ये बताया असंशय महाबाहु मन दुनि गृहम चलम। मैं बिल्कुल मानता हूं अर्जुन, मन जो है बहुत ही चंचल है, बड़ा बलवान है। अभ्यास तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास यानी सम डूज, वैराग्येन यानी कि डोंट्स। By following certain do's and don'ts, mind can be controlled, Arjuna. It is possible. क्योंकि मन बनाया किसने? भगवान ने बनाया। भगवान जानते हैं इसको कंट्रोल कैसे करना है। By following certain do's, do's में क्या आते हैं? Do's में आती है कृष्ण कॉन्शियसनेस, by chanting the names of God, okay, reading scriptures, going to the temple, being prayerful. ये सब do's हैं। Don'ts हैं, no meat eating, no gambling, no intoxication, no girlfriend boyfriend. ये don'ts हैं। If somebody follows these do's and don'ts, mind can be controlled. Otherwise, mind can take somebody to hell. Yes. आप देखिए दुनिया में ज्यादातर दुख किसी वजह से, मन की वजह से है। सुशांत सिंह राजपूत, मतलब पैसा है, शोहरत है, बॉलीवुड में करियर बढ़िया है भाई, फिर भी हालांकि जो हुआ वो आज भी एक पहेली है, लेकिन वैसे ही माना रहे, यस सीबीआई ने बोला यार इट वाज सुसाइड। उसके पहले प्रवीण बॉबी, दिव्या भारती, नफीसा जोसेफ, so many cases from glamour industry committing suicide. Why? क्योंकि अगर मन अगर आपका हो गया ना खराब, तो आपका धन हो, अच्छा तन हो, कुछ नहीं काम आने वाला जी, बर्बादी तो कंफर्म्ड है। Yes, that's the way the mind works. तो इसलिए पीस ऑफ माइंड को लेके आना है बहुत जरूरी है। माइंड हो रहा है पीसेस ऑफ माइंड, माइंड है उसके कई सारे पीसेस हो चुके हैं, तो इसीलिए उसको उसमें पीस लेकर के आना, उसमें शांति लेकर के आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए दुनिया के अंदर जितने भी दुख है ना, उन दुखों में मन से ज्यादा दुख है, तन से कम दुख है, मन से ज्यादा दुख है इस दुनिया के अंदर। लेकिन मन को भला शांति कैसे मिलती है? मन को शांति मिलती है भक्ति करके, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करके, कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस करके। एक्चुअली यस, आज मैं अगर किसी को बताता हूँ ना, मैं भक्ति में आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, वो मानते नहीं, कहते नहीं नहीं हम वो गिला फू, आप तो इतने हंसमुख हो यार, आप कहाँ गुस्सा करते होगे।
मेरे माता पिता से पूछो, बता अरे बड़ा गुस्सा था इसके अंदर, ये तो अच्छा हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया इसने, ठीक हो गया ये, बड़ा गुस्सा आता था इसको। मन शांत होता है, दैट्स द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स द वे इट इज। ओके, नेक्स्ट जो हमें लाभ मिलता है by practicing spirituality is that protection from bad association. We are surrounded with bad association. बुरी संगति का मतलब चारों ओर अंबार लगा हुआ है। आज तो bad association, especially from the smartphone, so much bad association. बच्चे घंटों बिताए थे YouTube पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अरे बाबा घंटों घंटों बिताए थे। पर इस सब पे मिल क्या रहा है? बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, हमारा मन ये जो है ये भटक जाता है, बैड एसोसिएशन। लेकिन प्रोटेक्शन कैसे होती है? अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, if you are practicing Krishna consciousness, that leads to protection from bad association. मुझे याद है मैं जब काम किया करता था इन माय ऑफिस, तो आप सब जानते थे कि ना ये हरे कृष्णा वाला भाई, ये हरे कृष्णा वाला है, और ये हरे कृष्णा वाला भाई, तो कभी भी ना मेरे आगे मीट ईटिंग की बात नहीं करेंगे। उनको पता लगता है, अगर मुझे पता लगेगा कि ना कोई मीट खा रहा है, अगर मैं तो ओ चलते फिरते कब्रिस्तानों का हमारा प्रणाम भाई, अरे क्या बात है भाई। उनको अरे यार ऐसे कैसे बोल रहे हो यार तुम, यू आर कॉलिंग अस वॉकिंग ग्रेवयार्ड्स, चलते फिरते कब्रिस्तान। मैंने कहा भाई जहाँ डेड बॉडी डाली जाती है उसको कब्रिस्तान बोलते हैं, तो आप लोग ये डेड बॉडी तो डाल रहे हो जानवरों की, इसलिए हम तो कब्रिस्तान हुआ। बट यस यू आर वॉकिंग ग्रेवयार्ड, चलते फिरते कब्रिस्तान। तो उसको पता था भैया अगर दारू वारू पी, सिगरेट फूकी या फिर टंगड़ी वंगड़ी तोड़ी तो ताने मारेगा बिना मतलब के। तो इससे ना मेरे आगे वो बड़े अच्छे बन के रहते थे कि हाँ भाई अच्छे बन के रहो, बिकॉज इसका ये तो नहीं तो क्या ये इतना ताने मारने बहुत उस्ताद है, तो दैट वे दे वुड बी लाइक दिस। पर एक समय क्या हुआ, हमारे ऑफिस में एक नया रिक्रूट आया, नया ज्वाइन था, और उसका सिस्टम था मेरे एकदम डायगोनल था, और उसको पता नहीं था मैं हरे कृष्णा वाला हूँ, आई एम हरे कृष्णा डिवोटी। तो अगर मेरे पास कहा सर आज चल रहे हैं ना सर, आज ना चल रहा है क्या सर, मेल आई हुई है ना। मैंने मेल चेक की, मैं कहा नहीं मुझे तो कोई मेल नहीं आई। सर वो मेल आपको नहीं आई? सर वो दारू पार्टी की मेल आई ना, शाम को दारू पीने के लिए जा रहे हैं। दारू पीने के लिए जा रहे हैं? अब ये बात एक सीनियर मेंबर ने सुन ली, कहता वो भाई उसको छोड़ दे, वो हरे कृष्णा वाला है, उसको पता लग गया ना हम लोग दारू पीने जा रहे हैं, ताने मार मार करके हमारी दारू उतार देगा वो, तो भाई उसको छोड़ दे। उसको मेल हमने नहीं भेजी है, बाकी सबको मेल गई है, हम लोग दारू पीने जाएंगे, लेकिन उसको नहीं बताते हम। सो बैड एसोसिएशन हालांकि कभी कभी सोचती भी है कि हमारे जीवन में आ करके हमको दूषित करे, प्रभावित करे, नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हेन आई वाज वर्किंग अर्ली इन द मॉर्निंग आई वुड चैंट माय राउंड्स, मतलब 60-70% टाइम्स में 16 राउंड्स करके जाया करता। अगर कभी 2-4 राउंड बच गए तो आई कम बैक एंड देन चैंट, मैं करके जाया करता। और उसका परिणाम ये होता था कि बुरी संगति मेरे पास अगर कभी आती भी थी तो मुझे दूषित नहीं कर पाती थी। क्यों? बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। Because association is something which can make you, and association is something which can break you. आपको बनाने वाली भी संगति है और आपको तोड़ने वाली भी संगति होती है। तो बुरी संगति आपका बिगाड़ नहीं पाती। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो किसी ने बोला स्वामी जी अमेरिका में आए, बड़ी ठंड होती है यहाँ पर, ब्रांडी पी लिया करिए 2-4 पैक, उससे गर्मी आ जाएगी आपको स्वामी जी, ठीक है ना स्वामी जी। प्रभुपाद जी ने कहा लोग अमेरिका में आते हैं और अमेरिका के स्टाइल को अपनाते हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका से वो कुछ लेने के लिए आए हैं। लेकिन मैं अमेरिका में कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं अमेरिका में कुछ देने के लिए आया हूं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए मैं अमेरिकी तौर तरीके नहीं अपनाऊंगा। आपको अगर पैंट शर्ट पहननी है पहनिए, आपको अगर चाकू छुरी से खाना है खाइए, आपको अगर ब्रांडी पीनी है पैग लगाने उसके आप लगाइए, मैं नहीं लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी के ऊपर इस तरह के कई अगर सुझाने बुझाने वाले लोग भी थे, but he was absolutely bindas. He was so stable, no effect of bad association. बल्कि ये लोग प्रभावित होते थे इनको देख करके। That means he was giving his good association to them. Wow, that's really amazing. So इसीलिए हम देखते हैं कि जो bad association होती है वो impact नहीं डाल पाती है। Why? Reason being somebody is practicing Krishna consciousness. तो इसीलिए ये लाभ हम सबको मिलते हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करेंगे यूथ में। और देखिए सारे इश्यूज ना एक्चुअली यूथ के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइटिंग अगेंस्ट एडिक्शन, या फिर नेगेटिविटी से लड़ना, या फिर एफिशिएंसी से के लिए जूझना, रिश्ते अच्छे हो जाना, या फिर मन की शांति, बुरी संगति से बचना, ये सारे काम वन शॉट हो जाते हैं अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं
तो that's why I would request all of you कि आप सब कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में लेकर के आइए. ये यंग एज इज द राइट टाइम. एक्चुअली यही राइट टाइम है. नहीं तो क्या पूरा जिंदगी आप टेंशन में एंजाइटी में रहे, गोलियां खाते रहे, बुढ़ापे में जाकर शुरू किया. ये क्या बात हुई? So इसलिए please I request all of you to please kindly take your Krishna consciousness very seriously. All of you are very blessed that you have got such nice mentors, such nice guides in the form of Ajanma Krishna Prabhu, Janadut Prabhu. So many great devotees are here. So that case, please take their association, please take their guidance, get benefited, stay blessed. Thank you. Hare Krishna. If anybody